Hello, guten Abend. Please mark your attendance. Okay. Is my voice clear? Okay, I'll share screen with you then. Okay, is the screen visible? Yes. Okay. Um, yeah, so we were discussing about family. या फैमिली मेंबर्स को हम कैसे नाम देंगे हर एक को, मतलब जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, जो कुछ भी है वो, और बहन, भाई, ये सब के नाम हम लोग देख रहे थे. सो ये जो पहला दो थे पैराग्राफ वो हमने रीड कर लिए थे. दैट इज, उसमें हमें नए वर्ड्स मिले थे, श्वेस्टर, ब्रूडर और ओपा, ओमा, ओमा, या और उसमें और ज्यादा जो हमें वर्ड्स मिले थे उसमें हुंड, और एक था हाउस टियर. तो टियर का मीनिंग हमने देख लिया था, हाउस टियर का मीनिंग देख लिया था. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये थर्ड पैराग्राफ है, सिमिलर है. इसमें और ज्यादा हमें कौन से हम रिलेशन में, फैमिली में कौन से नाम लेते हैं वो पता चलेंगे. ओके, सो अनुश्री और अवंतिका, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. Yes, okay. Avantika, you will read for Valentina, or Anushri, you will read for Avni. Okay, ma'am. Yeah. Hello, Avani. Here is my family photo. Ach, wie schön. Das ist mein Vater, Vater Wolfram Huber. Seit 1995 leben er und meine Mutter in Wien. Mein Vater ist Fiumf und 5 und sehr alt, Dreizisch. Dreifisch und hat eine Internet-Agentur. Agentur. Agentur. Sie heißt WebTech Coaching. Und deine Mutter, was macht sie? Meine Mama heißt Kerstin Huber AB. Sie ist Journalistin. Und das ist Konstantin, nicht wahr? Ja, richtig. Mein kleiner Bruder Konstantin ist erst 4 und bist du siehst du sehr Jahren den Kindergarten und das bin ich. Auf dem Foto bin ich 7 alt. Ich Besucher. besuche die Grundschule. Ja. Habt ihr Haustiere? Oh ja. Oh ja. Teacher, what is that word? Naturally. Natürlich, das
Here is Kitty Hoover, Usiri family, Unzara Usara family, Cats. cuts. Yeah. Family and cuts. You both can switch off your mic. Very good. स्क्रीन क्लियरली दिख नहीं रहा है या थोड़े आज ज्यादा वर्ड्स है इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है ना? सिर्फ इतना बता दीजिए। Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रहा था ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आज कुछ नए नए पढ़े हैं हमने, दैट इज फाइन। अवंतिका, जो नंबर्स है ना वो सारे हमें जर्मन में ही पढ़ने हैं। आपने 1995 पढ़ा, दैट शुड बी। अगर इतना प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा तो आइंस नाइन नाइन फ्यूम, ओके? Ma'am, हाँ, ma'am, if you can just put it on slideshow. yeah, again I'll put it, but let's see whether it is visible on the phone or not. Yeah, मैंने स्लाइड शो पे कर दिया है अभी, but that is not visible here. Ma'am, what screen are you sharing? Window. Yeah, but you will have to then share the slideshow window. Okay, अगर मैंने स्लाइड शो मोड पे मैं चली गई ना, हाँ. ओके, तो उसके बाद वो विंडो शेयर करने के लिए मुझे ऑप्शन कैसे आएगा? No, you have to go back to the Google Meeting. Meet and then again stop sharing and then again start sharing. Okay, just wait, I'll do it for one more time. If not, पहले मैम क्योंकि मेरे आप स्लाइड शो करो. हाँ, मैंने Then किया you, स्लाइड शो। yeah, first you do the slideshow, then you go to presentation options. बट अभी मुझे प्रेजेंटेशन ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा क्योंकि गूगल मीट मेरे सामने नहीं है लैपटॉप पे। No, no, मैम आपने slideshow चालू किया ना अभी? हाँ, So you go now. You can press Alt and Tab together, and you will see like you will be able to, if you keep pressing Alt and okay, Tab, yes. then you will be able to go to Google Meet, या and now you can share the slideshow window. एक मिनट, Alt and Tab, उसके बाद मैं बाहर क्यों निकल रही हूँ? वो एक मिनट के लिए आ रहा है कुछ तो, और Yeah. फिर रिज्यूम स्लाइड शो ऐसा हो रहा है। Ma'am, I'll have to maybe tell you later on. ओके, नो प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? क्योंकि मेरे फोन पे प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आज हाँ फिर से मैम, लैपटॉप right में now चली गई मैं। you are not presenting right now. हाँ नहीं, मैंने बंद कर दिया था वो, ये सब स्लाइड शो वगैरह कर रही थी इसलिए। ओके, अब पूरा ही बंद हो गया। एक मिनट में देखती हूँ। हाँ, अभी जितना है उतना दिख रहा है? Yes. ओके, सबको दिख रहा है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। या ओके, जिया गुड। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए अगर तो बता दीजिए, मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ कि मेरे फोन से ओपन हो जाए। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हमने देखे। फैमिली एंड फोटो तो हमें पता था। वी शोन, आंख वी शोन, वाओ नाइस, ऐसा जिसके लिए हम लोग बोलेंगे, सो आंख वी शोन। Und dann das ist mein Vater, फादर का नाम दिया है। अब ये फोटो आपके सामने है तो उसके रेफरेंस में ही जो सारे डायलॉग्स है वो चालू है, ठीक है? तो उनके फादर कहाँ से है, उनकी मदर कहाँ से है, उनकी उम्र, फादर की उम्र कितनी है, वो काम क्या करते हैं, ये सारी चीजें वो लड़की मेंशन कर रही है। ein इंटरनेट अंगेटोर। उसके बाद und deine Mutter was macht sie, तो आपकी मदर क्या करती है, ओके? सो उसका नाम बता दिया है। और उसके बाद जी इज जर्नलिस्टिन, तो ये सारे वर्ड्स हमने पहले ही पढ़े हैं कि वो पेशे से क्या है, जर्नलिस्टिन, राइट? उसके बाद या जो फोटो में है वो कॉन्स्टेंटीन है क्या? अभी हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा दिख रहा है दैट माइट बी कॉन्स्टेंटीन, और ये उस लड़के का नाम है, या रिस्टिश माइन क्लाइनर ब्रूडर। क्लाइनर छोटा, okay, so kleiner Bruder Konstantin ist erst 4, he is now 4 years old and वो जब से 2 साल का था तब से वो किंडरगार्टन में जा रहा है, मतलब पिछले 2 साल से वो किंडरगार्टन में जा रहा है। या और लास्ट में खुद को बताया गया है उसने, जो वो लड़की है वो, कि वो 7 साल की थी तब का ये फोटो है।
और उसके बाद वो अवनी ने पूछा है कि हाब्ट ईयर आउस्ट ईयर। अब ये हाब्ट जो है ना, ये हाबेन वर्ब का कॉन्जुगेशन है। ओके, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं, हाबेन वर्ब का कॉन्जुगेशन। सो हाब्ट ईयर हाउस्ट ईयर है, तो आपके पास कोई पेट है और उसका आंसर वैलेंटीना देती है कि या नेचुरली आई हैव अ पेट, ऐसा उसका आंसर है। और जो उसका जो कुछ भी हाउस्टियर है उसका उसका नाम दिया है उन्जर फैमिलियन कैट्स। या सो फैमिलियन, यू नो दिस वर्ड, was bedeutet Katze? काटसा का मीनिंग क्या हो सकता है? रिस्टिश, कैट। ओके, सो हाउस टियर के नाम में आपको दो नाम मिल गए पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, das Hund und die Katze। Okay, so any doubt in this paragraph? Who else wants to read this? क्योंकि पढ़ने के लिए ज्यादा है तो इसलिए कोई और भी एक बार पढ़ ले तो अच्छा होगा। Please write your names in the chat box. Yes. No one? अर्णव और श्लोक? Ma'am, what are you saying? पढ़ोगे क्या ये पैराग्राफ फिर से? Yes, ma'am. ओके, किसने माइक ऑन किया है अभी, अर्णव या श्लोक? Ma'am, which one? अर्णव। ओके, श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक आल्सो। यस मैम, मैं वैलेंटीना का पढ़ूं या अवनी का पढ़ूं? वैलेंटीना का पढ़ दो और अर्णव आप अवनी का पढ़ लो। हेलो Okay, अवनी, हियर इज माय फैमिली फोटो। Ask. Wie ist Korn? That is mein Vater Wolfram Huber. Sieht 1 9 1 9 9 9 9 5. 1 9 5 1 9 9 5. Leben und mein Mutter in Wein. Mein Vater is 35 Jahre ma'am. Fume und नहीं मैम, dry fumsig, nein Fume und 30 fume von dry fish। नहीं मैम, 35 है ना मैम, तो ड्राई und fume fish ना। नहीं, जो पहला नंबर आता है वो हम लोग पहले बोलते हैं ना, 21 22। हाँ मैम। या तो पहले जो लास्ट वाला नंबर आता है वैसे जाते हैं ना हम लोग, फ्यूम und 30। ओके मैम, क्लियर? या एक बार फिर से आप पढ़ लो वो नंबर्स वाला, अगर फिर से डाउट होगा तो पूछ लीजिए। Fume und dry fish, Jahre alt und hat ein Internet-Angetor। मैम ये इंटरनेट एंगेटोर क्या है? Agentur बताती हूँ मैं, आप पढ़ लीजिए, मैं बताती हूँ। इंटरनेट एंगेटोर, सी हाइस्ट वेब टेक कोचिंग। या Und इंटरनेट स्टार्टअप एजेंटूर। ओके, और उसका नाम जी हाइस्ट, क्योंकि वो इंटरनेट एजेंटूर के पहले हम लोग दी लगाएंगे, फैमिलियन लगाएंगे, जो हमने देर दी दास पढ़ा था उसमें से दी, इसलिए जी हाइस्ट वो स्टार्टअप का नाम है डैश डैश। ओके, या अर्णव। Und dein Mutter was macht sie? Mein Mama heißt Kerstin Huber Eil. Sie ist Journalistin. Ja, Arna? Und das ist, ma'am, what is this? Konstantin. Konstantin, nicht Ja. wahr? Nicht wahr? Ja, richtig. Mein kleiner Bruder Konstantin ist erst vor und besucht seit 2 Jahren den Kindergarten.
Yeah. Und das bin ich. Auf dem Foto bin ich 7 Jahre alt. Ich besuche die Besuche Grundschule. Habt Ihr. Ma'am, Arnav. Yes, Arnav. Habt is your Haustier? Oh, ja. Natürlich. Das hier Kitty Huber, unser Familia Familia Katze. Katze. या sehr gut. अभी इसमें जो उनजरा है दैट उसका मीनिंग होता है अवर, तो उनका भी वो जैसे हमने चार्ट पढ़ा है देरदी दास का, सिमिलर चार्ट होता है कि कौन सा इश के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना मी माई, ऐसा सब कुछ होता रहता है, आई के लिए माई यूज करेंगे, तो यहाँ पे इश के लिए माई न होता है, तो सिमिलरली उनजरा कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें हमें ग्रामर में पढ़नी है। अभी सिर्फ याद रखिए कि ऐसे वर्ड्स हमने कभी ना कभी तो देखे थे। Okay, so now going to next slide. Ergänzen Sie die Namen. Okay, तो अभी आपके रिलेशन में इनके नाम बताने हैं। ओके, अगर आपको असली मतलब ऐसा है कि फाटर मुटर तो है ही, डॉक्टर जॉन, कैन यू गेस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स? फाटर मुटर वी नो, फादर एंड मदर, डॉक्टर डॉटर, उन जॉन सन। ओके, तो उनके स्पेलिंग्स याद कर लीजिए। डॉक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जोन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं? या तो अभी इसमें ये आपको अपने लिए, खुद के लिए कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, इफ यू हैव सम सिबलिंग हु इज गर्ल देन डॉक्टर, जो लड़के हैं उनके लिए, और लड़कियां हैं उनके लिए जो उनका ब्रदर होगा उनका नाम। समझ में आया ना, फैमिली ट्री जैसा है। तो यू हैव टू फील दिस फैमिली ट्री, फाटर मुटर, फादर का नाम, मदर का नाम और दो बच्चों का नाम, जैसे भाई का नाम और बहन का नाम आपके लिए। ओके, सो मैं एक एक को माइक ऑन करने के लिए बोलूंगी। सिर्फ फाटर में, मुटर में एक एक नाम बता दीजिए, डॉक्टर में एक और जोन में एक। राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। हरिदास श्रीजा, वाटर हरिदास, मोटर श्रीजा, जोन सूरज। डॉक्टर कोई भी, आप कुछ भी इमेजिनरी नाम भी बोल सकते हो। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट डॉटर का नाम है, जोन का नाम है। कल जाते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर के नीचे लड़के का नाम लिख दिया है, तो इसलिए सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है। ओके, नेक्स्ट रिया। या फाटर रविंद्र सिंह, मोटर लतिका, डॉक्टर रिया, ओके, and उन जोन। Zon Arnav. ओके, sehr gut. Dann आई गेस सबका एक एक बार तो पढ़ के हो चुका है कुछ ना कुछ, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैमिली ट्री बनाते वक्त ये सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, मैं होमवर्क में देने वाली हूँ आपको ये चीज कि अपनी खुद की फैमिली ट्री बनानी है, जिसमें आपको आपके ये पूरा लिखना है कि ओपा ओमा मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद फाटर मुटर, उसके बाद ब्रूडर श्वेस्टर, और भी जो कुछ हम लोग रिलेशंस पढ़ने वाले हैं वो। अभी एक लिस्ट बना के रखिए जिसमें आप ये लिखोगे, फाटर मतलब क्या होता है, मुटर उसका मतलब ओपा ओमा, श्वेस्टर ब्रूडर, डॉक्टर और जॉन। ओके, तो इतने सारे तो हमें फैमिली मेंबर्स के जो नाम होते हैं, बेसिक फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हैं, ये चीजें हमने इतनी पढ़ ली है। अभी इसके बाद नेक्स्ट होगा Die liebe Verwandtschaft oder meine Großfamilie. Okay, my dear relatives, Verwandtschaft, Verwandt, relatives. Verwandt bedeutet relatives. Okay, und Verwandtschaft ist relationship. Die Liebe relationship, Liebe loving. Okay,
सो लविंग रिलेशनशिप और माई ग्रोस फैमिली, मतलब मेरी बड़ी फैमिली, ग्रोस बड़ी। ओके तो ये लिख लीजिए, Verwandte bedeutet relatives. Okay, und Verwandtschaft bedeutet relationship. So my dear relatives और my joint family, तो इस फोटो में एक इंसान ने अपनी पूरी फैमिली जो है उनके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है वो मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ओपा का नाम लिखा है रोलैंड रोजेनबाउर, ओमा रेनाटा रोजेनबाउर, टॉक्टर क्रिस्टियाना रोहर, जियोन। अब ये देखिए, हमने जो पहले स्लाइड में देखा था वो था जोन, राइट। सो इन दिस स्लाइड जोन, सो जोन देखा था हमने, सो दैट इज सिंगुलर, देयर जोन। Und für Plural die प्लूरल के लिए हम लोग लिखेंगे दी ज़्योन। ओके, तो अब इसमें ये जो अगली वाली स्लाइड है उसके हिसाब से क्या है, ज़्योन यूलियन उन फ्रेडरिक रोअर, ठीक है, मतलब दो लड़के हैं। क्रिश्चियनस मान, मतलब क्रिश्चियन का मान यानी हस्बैंड, मार्टिन रोहर, जोन उर्लिख रोजेनबाउर, ट्योक्टर मैथिली उन अवनी रोजेनबाउर। तो अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दी फेमिनिन है तो दी, टॉक्टर उन दी, प्लूरल करने के लिए दो लड़कियां हैं तो हाउ विल यू डू इट, दी ट्योक्टर। तो वो प्रोनाउंस करते वक्त भी आना चाहिए। ओ के ऊपर जो उमलाउट हम लोग डालेंगे प्लूरल करने के लिए, जो उमलाउट डाला है वो भी आपको लिख के लेना है और वो प्रोनाउंसिएशन में भी अच्छे से आना चाहिए, दी टॉक्टर। देन उलिस फ्राउ अंजलि, जो उली है उर्लिश जिसका नाम लिखा है उसकी बीवी, मतलब अंजलि। फ्राउ बीवी, मान हस्बैंड, उन फ्राउ वही। अब यहाँ पे फ्राउ का मतलब लेडी भी होता है और मान का मतलब मैन भी होता है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ना रिलेशन में हम लोग देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिस मान ऐसा लिखा है, मतलब क्रिश्चियन का, तो अभी मान मतलब मैन ऐसा नहीं होता, हस्बैंड उस रिलेशन में दिया है। तो सारे रिश्ते समझ में आ गए, कोई नए इसमें ऐड नहीं हुए हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हैं वही है, ओपा, ओमा, डॉक्टर, जोन, उन मान फ्राउ तो नया है, दैट्स इट। बाकी उन दोनों के प्लूरल्स भी हमने देख लिया अभी। या अभी जो हम जैसे बोलते हैं पेरेंट्स में क्या आता है, फादर और मदर, राइट। सो व्हाट डू वी कॉल फॉर पेरेंट्स इन जर्मन, एल्टर्न। फाटर und मुटर sind Eltern। सामने स्पेलिंग दिख रहा है आपको एल्टर्न का, der Vater und die Mutter sind die Eltern। Okay, dann Sohn und Tochter sind Kinder, बच्चे, Kinder। Dann Bruder und Schwester sind Geschwister, siblings, brother and sisters together, what we call in English siblings, right? So Bruder und Schwester sind Geschwister। Großvater und Großmutter Großeltern। Ja, Enkel und Enkelin Enkeleltern। Onkel, Tante, Cousine, Neffe, Nichte, alle sind Verwandte। Uncle, Auntie, Cousins, भांजा भांजी, नेफ und Nichte, ये सारे बाकी के रिलेटिव्स के नाम हैं।
Okay, so please write them down. आपकी नोटबुक में लिख के लीजिए गेश्विस्टर मतलब क्या होना चाहिए। अगर मैंने पूछा कि वास दाइनर गेश्विस्टर, वास मार्क दाइनर गेश्विस्टर, तो आप क्या जवाब दोगे? ये आपको पता होना चाहिए ना। 5 and 6 नेफा उन निष्ठा। आपका 5 और 6 समझ में नहीं आया मुझे। 4 and 5 Ma'am, the number, that fourth one. ग्रोस फाटर und ग्रोस मुटर। Yes, ma'am. Ma'am, the answer spelling. या ग्रोस एल्टन, जस्ट जो फिल इन द ब्लैंक है ना उसमें एल्टन डाल दीजिए, दैट्स इट। यस श्लोक। Ma'am, I understood that fourth one, but I have doubt in that fifth one because Elton starts with EL and in ankle there is EL. ये किसने बोला अभी? अर्णव? ये Yes, श्लोक ma'am. का डाउट था। अब दोनों के साउंड इतने सिमिलर है ना, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कौन बोल रहा है। Ma'am, I am saying Arna. ओके ओके, ठीक है, तो मैं एक बार चेक करके आपको कंफर्म बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी एल्टन ओनली, बट फिर भी मैं चेक करके आपको बता देती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. अभी के लिए एल्टन लिख लो। Okay, ma'am. या Ma'am, so I will write like this: ENKELTERN. हाँ, एल्टन पूरा का पूरा वर्ड लिख लो, एंकेल एल्टन। Okay, ma'am. या यस श्लोक, you wanted to say something na? Yes, ma'am. May I write this later, ma'am? Yes, sure. Yeah, okay, so अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, सबको पता चल गया फेरवांटर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में क्या क्या आता है? एल्टन, किंडर, गेश्विस्टर, ठीक है? अगर आपको कोई किसी ने ऐसा पूछा वाक सॉरी वास मार्केन दाइनर एल्टन, तो आप बता सकते हो आंसर। Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist Hausfrau, या ये उसके आंसर में आएगा। wie sind बेटा। ओके, सो अगर किसी के क्वेश्चन में आपको एल्टन, किंडर, गेश्विस्टर ये सारे वर्ड सुनाई दे रहे हो, तो आपको आंसर करते वक्त ये समझ में आना चाहिए कि ये फादर मदर कब किसके बारे में हमें बोलना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, उनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ with the help of photograph and the information below it, complete this text. ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली किस बारे में था? रोलैंड und रेनाटे haben Pier 2 und 2। अब इसमें हमें देखना है, मैं फिर से एक बार फोटो की तरफ जाती हूँ। ये सवाल आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से कि Ma'am. रोलैंड। यस Ma'am, I had one doubt. Ma'am, what is the difference between uncle and uncle? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जब मैंने पढ़ा था तब का मुझे याद है, एक पैटर्नल अंकल और एक मैटर्नल अंकल होता है। Okay. And nephew and niece. भांजा भांजी। Okay, nephew and niece. Yes, yes, Okay, yes. okay. ओके, सो रोलैंड und रेनाटे haben Pier। अब इसमें हमें फोटो में देखना पड़ेगा कि रोलैंड और रेनाटे ये जो दो लोग हैं उनके चार क्या है। ओके, बच्चे हैं, भाई बहन है, पेरेंट्स है, वॉट एवर इट इज, तो वो हम लोग पहले चेक करते हैं। फियर, अब रोलैंड और रोनाटे ये नाम कौन से है? ओपा और ओमा के, तो उन्हें चार क्या है वो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन पढ़िए और बता दीजिए।
4 लड़के हैं उनके। Ma'am, yes, ऐसे Ma'am, yes, gross kinder. रिश्टिश, ग्रॉस किंडर। रिया आपने सही लिखा, बट दैट शुड बी इन जर्मन। ओके, ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट इज करेक्ट आंसर, ग्रोस किंडर। ठीक है, ग्रोस किंडर मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन। अब हम लोग फोटो में भी देख सकते हैं, अगर ये ओपा ओमा है, उनके 2 बच्चे हैं, तो ये 2 तो नहीं है, एक लड़की है और एक लड़का है, क्योंकि एक लड़की का हस्बैंड के बारे में लिखा है और एक लड़के के बीवी के बारे में लिखा है, राइट। तो इसलिए इन दोनों के 2 बच्चे हैं, ओके, और उनके 4, उनके मतलब इनके 2 और इनके 2 है। ठीक है, तो उस हिसाब से ओपा और ओमा जो कि है रोलैंड और रेनाटा, उनके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब ग्रॉस किंडर। स्वाई, अभी इसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, स्वाई डैश डैश und स्वाई डैश डैश। यस, स्क्रीन पे देख के बता दीजिए, स्वाई उसके बाद क्या लिखोगे और उन स्वाई उसके बाद क्या लिखोगे। पहले वाले के आंसर में तो आपको ये डालना है, Großkinder, रोलैंड und रेनाटा haben 4 Großkinder, स्वाई डैश, वो डैश में क्या जाएगा पता चल रहा है। ग्रोस किंडर में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार फोटो फिर से दिखाती हूँ मैं। नहीं, ग्रोस जॉन जोन नहीं लिखोगे आप, सिर्फ जॉन। पहले ही हमने लिख दिया है ना कि ग्रोस किंडर है, तो उसका मतलब ही होता है कि सिर्फ ज्योन लिखा तो भी चलेगा वहां पे। उन एक स्वाई के आगे तो चला गया ज्योन, उन स्वाई डैश उसमें क्या जाएगा, पहले से हिंट लेके दूसरे का आंसर दीजिए। या अभी प्लूरल, ट्योक्टर, आंसर इज राइट, ट्योक्टर। क्लियर, सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है इसमें। कैसे करना है ये एग्जाम्पल आपको आगे के लिए काम आएगा कि कैसे कैसे लिखते जाना है। या बेटा कुछ तो लिख लीजिए चैट बॉक्स में कि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है या नहीं, या पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही है अभी भी। हम लोग एक बार फिर से हिंदी में वो फैमिली समझ लेते हैं ताकि आपको आंसरिंग करने में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जो आपको एक्चुअल एग्जाम में भी करना है, अपनी लैंग्वेज जो भी कोई होगी उसमें समझ लीजिए कि वो कैसे फैमिली दिख रही है हमें, और उसके हिसाब से हमें जर्मन वर्ड्स लिख के वहां पे आंसर करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ओपा und ओमा मतलब दादा दादी 2 लोग हैं, उसके बाद उनकी एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, जो अब लड़की का नाम क्रिस्टियन है, उसके वो क्रिस्टियन के 2 और लड़के हैं, ये और ये। ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है उसका नाम मार्टिन है। उसके बाद इन दोनों का बेटा जो ये है उर्लिश, उसे 2 लड़कियां हैं, एक लड़की यहाँ पे बैठी है और एक लड़की यहाँ पे बैठी है, क्योंकि यहाँ पे ट्योक्टर इस्तेमाल किया है, ट्योक्टर प्लूरल है, तो अब इसकी क्योंकि 2 बच्चियां हैं तो इसलिए वो प्लूरल है, और वो 2 बच्चे यहाँ पे है, और इसकी बीवी यहाँ पे है अंजलि। ओके, अभी हिंदी में समझा है तो फैमिली समझ में आ गई कि क्या फैमिली है, उस हिसाब से सिर्फ हमें अब जर्मन वर्ड्स डाल के आंसर देना है।
क्रिस्टियानस फाटर हाइस्ट। अब क्रिस्टियान के फादर का नाम क्या है? अभी फोटो की तरफ नहीं गए तो भी आप गेस कर सकते हो। आई थिंक एक बार ट्राई करो, अगर गलत हो रहा है कुछ तो फिर से हम लोग फोटो देखेंगे। क्रिस्टियान के फादर का नाम ज़ियागुट, रिस्टिश, रोलैंड। जो ओपा है, रिलेशन में ओपा लिखा है, वो उनका फादर है, ज़ियागुट। और उलिस मुटर हाइस्ट। अब उलिस कौन है ये भी हमें पता है। या उलिस मुटर हाइस्ट रेनाटा, मतलब ओमान। जो ग्रैंड माँ है शी इज उलिस। उलिस और क्रिस्टियाना क्योंकि क्या है वो बाद में पूछती हूँ मैं, पहले ये इसका जवाब सबको मिल गया। रोलैंड उन रेनाटा कहाँ कहाँ पे लिखना है। उसके बाद आएगा अवनी उंड मैथिली जेंड। अवनी उंड मैथिली, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की कौन है? या नहीं, डॉक्टर तो नहीं होगा। वो दोनों किसी की डॉटर्स है, दैट इज करेक्ट। बट और कुछ हो सकता है? डॉक्टर इज ऑल्सो राइट इन अ पार्ट कि वो इन दोनों की, मतलब क्रिश्चियन की या नहीं सॉरी उलिस की बच्चियां हैं। या sehr gut, Geschwister oder Schwester, sisters। ओके, तो ज्यादा करेक्ट गेशविस्टर है, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। या und Urlish und ja Urlish und Anjali sind ihre, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर्स है, दैट इज गेशविस्टर। उर्लिश und अंजलि sind ihre या फिर से एक बार फोटो देखिए। ये अंजलि उन मैथिली है और ये उर्लिश उन अंजलि है। एल्टन, ज़ियागुट, ये दोनों के बारे में बोल रहे थे ना हम लोग। तो ये दो लड़कियां एक दूसरे की बहनें हैं, दैट इज गेशविस्टर। उन ये उलिस, उन जो उनकी माँ है अंजलि, ये उनके पेरेंट्स है, सो एल्टन। ओके, सो जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक है उसमें अवनी und मैथिली sind Geschwister, Urlich und Anjali sind ihre Eltern। Klar? Next, Christiane ist Avnis। अब ये क्रिस्टियाना अवनी की कौन है? या Enkelin, sehr gut। Und Uli ist डैश onkel। किसका अंकल है उली? नहीं बेटा, मैथिली इस्ट मार्टिन्स, उसके बाद ये है क्रिस्टियाना इस्ट अवनीस एंकेलिन। मैथिली इस्ट मार्टिन्स, अभी मार्टिन कौन है? ये नया नाम आया बहुत बड़ी देर बाद। मार्टिन ये है, तो ये मार्टिन किन कौन हो गई?
या निष्ठ, निष्ठ, निस, भांजी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यूलियन इस्ट अंजलिज, यूलियन इस्ट अंजलिज, नहीं, अंजलि को दोनों लड़कियां ही है, या नेफ, या मतलब भांजा है अंजलि का वो। और नेक्स्ट है उली इस्ट डैश अंकल, उली किसका अंकल है? उली, ये किसका अंकल है? यूलियन उन फ्रेडरिक का, तो किसी एक, यस, जियागुड। उसके बाद आएगा यूलियन हट स्वाई डैश, यूलियन को स्वाई क्या है? या स्वाई Schwester, yeah, you can write zwei Schwester oder zwei Cousine und sie heißen Maithili und Avni. क्लार, बहुत बड़ा था, समझ में आ गया है सबको? सीधा है, आपको रिलेशन के नाम पता होने चाहिए, दैट्स इट। या क्लार फिर आलं? Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Onkel, Tanten, Cousinen? तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से लिख के रखनी है कि आपको कितने सारे भाई बहन है, कितने अंकल है, कितने आंटीज है, और जो कुछ भी होगा वो सारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये हमने थोड़ा सा जो पढ़ लिया है, गेनुस उन आर्टिकल, मतलब जेंडर एंड आर्टिकल्स, राइट। तो हमने देर दी दास ये तो 3 पढ़ लिए थे, अब उन पे डिपेंडेंट हमें आगे थोड़ा पढ़ना है। सो प्लीज फोकस नाउ। अभी तक जो था वो सारा वोकेबुलरी फोकस्ड लेक्चर था हमारा, बट अब जो पार्ट है वो फिर से ग्रामर वाला है थोड़ा सा ही, ठीक है। इसके रिवीजन भी हम लोग करेंगे, बट विल स्टार्ट फर्स्ट विद दिस ग्रामर पार्ट। इन जर्मन इवन नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ जेंडर, ये हमने देख लिया था, एंड आर क्लासिफाइड इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड नॉइटर, राइट। मतलब मेल, फीमेल, न्यूट्रल, ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। और वो ऐसे जाता है, मास्कुलिन के लिए देर, फेमिनिन के लिए दी, और न्यूटर के लिए दास। दिस इज सिमिलर टू सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज मराठी और हिंदी, जो हमने पिछली बार भी देखा था, तो, ती, ते, ऐसे जो जैसे हम मराठी में कहते हैं, सिमिलरली इस लैंग्वेज में भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फूसबाल, रिकॉर्डर, बूस, आर्म, नाम आर मास्कुलिन, तो इसलिए हम इन सब के पीछे देर लगाते हैं। देर फुटबॉल, देर रिकॉर्डर, देर बूस, देर आर्म, देर नाम, या देन हैंड, म्यूजिक, कोला, नूमर, कैमेरा, गराज आर फेमिनिन, इसलिए इन सब के पीछे हम लोग दी लगाते हैं। उसके बाद आता है हाउस, टैक्सी, टेलीफोन, ऑटो, बुक, ग्लास, काफे आर न्यूटर, तो इन सब के पीछे हम लोग दास लगाते हैं, दास हाउस, दास टैक्सी, दास टेलीफोन, राइट। और सो व्हेन यू लर्न अ न्यू नाउन, ऑलवेज रिमेंबर वेदर इट इज एम, एफ और एन, मतलब जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था, देर, दी, दास, जब भी कोई नया नाउन सामने आएगा, पहली चीज दिमाग में ये आनी चाहिए, इसके पीछे देर, दी, दास, इसमें से क्या होगा, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा अगला जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इस पे डिपेंडेंट रहता है कि देर, दी, दास क्या है, फिर आगे चल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि हमें सारे वर्ड्स के पता होंगे देर, दी, दास इमीडिएटली, नहीं होंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनके मुझे भी नहीं पता होगी, बट कभी भी कोई नाउन हमारे सामने आएगा, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ऑन द गूगल दैट वेदर इट इज फॉर देर, order die oder das. In German, nouns are often accompanied by an article. For example, a or an in English, जैसे इंग्लिश में
ए और एन होता है वैसे ही द indefinite article for masculine und neuter is ein und for feminine it is eine. ठीक है, तो हमने जो देर दी दास सी पढ़े हैं वो सारे डेफिनेट आर्टिकल्स है. अभी हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ने हैं. वासिस्ट दास, अगर कुछ चीज मास्कुलिन हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आइन बूस. फेमिनिन आइन नूमर. न्यूटर आइन टैक्सी. ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं अगर हमें ये पता है कि बुस के पीछे का जो डेफिनेट आर्टिकल है वो देर है, तो हमें ये डिफिकल्ट जाएगा आइन यूज करना. Das ist ein Bus. इन जनरल हम लोग बोल रहे हैं तो हमें आइन बूस बोलना है, और अगर वो फेमिनिन है तो उसके आगे ई लगाना है, आइन. ओके, इज इट क्लियर? जो मैंने बताया वो सब क्लियर हो गया? तो इसके बाद हम एक चार्ट बना लेंगे. ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा? देर दी दास, ऐसा एक के नीचे एक लिखा होगा. देर के सामने आप लोग लिखोगे आइन. दी के सामने आप लोग लिखोगे आइन. और दास के सामने आप लोग लिखोगे आइन. ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वैसे ही इसमें भी है. इंग्लिश में सेम आर्टिकल्स यूज होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए. उसका मेल फीमेल या न्यूटर से कोई रिलेशन नहीं होता, बट यहाँ पे होता है. ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल्स मास्कुलिन फेमिनिन उन न्यूटर के लिए है देर दी दास. उन इनडेफिनेट आर्टिकल से आइन आइन आइन. यहाँ पे आसान है हमारा. देर और दास होगा तो सिंपली हमें आइन यूज करके छोड़ देना है. सिर्फ अगर दी यूज होता है, फेमिनिन है, तो उसी केस में हमें आइन करना पड़ता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू. क्लियर? जब भी हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो उसमें ये चीज आएगी. आप लोगों को याद होगा वासिस्ट डाइनर नूमर, हमने डाइनर नूमर ऐसा पूछा था, या फिर वासिस्ट दाइन टेलीफोन नूमर. याद है? वो जो दाइन था अब उसमें तुम्हारा ये चीज थी, बट वो जो आइन आता है ना, वो दाइन में से जो आइन आएगा या माइन में जो ई आई एन आएगा, वो सारा इसी तरीके से कॉन्जुगेट होता है कि डाइनर करना है, वो उस नाउन पे डिपेंड है. अगर टेलीफोन नंबर पूछ रहे हो तो दाइन टेलीफोन नंबर आएगा, क्योंकि टेलीफोन के लिए आर्टिकल है दास, मतलब वो जाता है न्यूटर कैटेगरी में. ठीक है, तो इसलिए वासिस्ट दाइन टेलीफोन नंबर ऑर्डर वासिस्ट दाइनर टेलीफोन दाइनर नंबर, क्योंकि नंबर आता है फिर फेमिनिन कैटेगरी में, इसलिए वो चेंज होते हैं उनके आइनर दाइनर माइनर ऐसे सब कुछ. इसलिए ये चीजें भी याद रखनी जरूरी है कि इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होगा वो पर्टिकुलर नाउन के लिए, और उसके रिलेशन में इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग खुद से डिफाइन कर पाएंगे. ये याद रखने की जरूरत नहीं है. इसमें याद रखना सिर्फ ये है कि मास्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए और न्यूटर के लिए कौन सा जाता है अकॉर्डिंग टू योर नाउन, वेदर इट इज इन देयर दी और दास कैटेगरी. आप लोग ये डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अब कोई भी नाउन कौन से कैटेगरी में जाता है ये कैसे पढ़ने का, तो इसके लिए सिंपल है प्रैक्टिस. जितने भी नाउन्स आपके आंखों के सामने से रोज जाएंगे उतना आपको समझ में आते जाएगा. जैसे हमें हिंदी और मराठी में ऐसा नहीं पढ़ाया गया है कि इस चीज को ते पुस्तक ते टेबल ऐसा ही बोलना है कंपलसरी, ऐसा हमें पढ़ाया नहीं गया है. हम लोग सुनते सुनते वो पढ़ लिए हैं कि किस चीज को ती लगाना है, किस चीज को तो लगाना है. सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहनी है कि कौन से नाउन के आगे पीछे देर आएगा, कौन से इसमें दास जाएगा. ठीक है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी होती है, जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे टीचर ने जो कहा था कि अपनी नोटबुक में 3 कॉलम करके रखो, देर दी दास, इसके जो भी नया नाउन आएगा वो उसमें डाल दो, या फिर आप जो कुछ भी मीनिंग्स लिखने के लिए लिस्ट कर रहे हो वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, उसमें ही वो पर्टिकुलर नाउन के आगे ये देर दी दास जो कुछ भी है, अगर लेक्चर में नहीं कवर होता तो खुद से जाके गूगल पे देख के वो लिख के लो. ओके, जब भी आप वो लिस्ट खोलोगे आपके सामने डायरेक्टली आर्टिकल भी आ जाएगा, तो वो आसान होगा.
दैट्स इट. ये एक चीज है जो 5 मिनट में तो कवर नहीं होगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कितना होता है. जस्ट Ma'am? एड अ, यस. Ma'am, once can you show the last slide? Yeah, okay, sure. Yeah. If you are writing, please note it down. Ma'am, done. ओके, वेरी गुड. तो अभी इसी से रिलेटेड थोड़ा सा है. जस्ट एड अ के एंड यू हैव द नेगेटिव फॉर्म. ओके, तो जैसे आइन, आइनर, आइन, ये सब चीजों को अगर हमने सिर्फ के ऐड कर दिया, मतलब इस्ट दास आइन हंडी, ऐसा क्वेश्चन है. नाइन दास इस्ट काइन हंडी, तो ये मोबाइल फोन नहीं है, तो सिर्फ के ऐड कर दिया, काइन हंडी. Das ist ein MP3 Spieler, MP3 प्लेयर है वो. तो सिर्फ वो जो अब ये काइन होगा वो भी ऐसा ही जाएगा. अगर मास्कुलिन है तो काइन, फेमिनिन है तो काइन, फॉर न्यूटर इट विल बी अगेन काइन. ओके, सिर्फ के ऐड करना है और निगेटिव फॉर्म क्रिएट करना है. इस्ट दास आइन गिटार, अब यहाँ पे आइन आया क्योंकि गिटार के पीछे आर्टिकल होता है दी, सो दी गिटार होता है, वो फेमिनिन कैटेगरी में जाता है, इसलिए इस्ट दास आइन गिटार. नाइन दास इस्ट काइन गिटार, नो दैट इज नॉट गिटार, दास इस्ट आइन वायोलिन. Compare the following sentences. Das ist keine Gitarre. Das ist kein Glas. Das ist kein Fußball. Ich bin nicht Patrick. Wir kommen nicht aus Indien. Wohnt ihr nicht here? तो अभी कहीं पे जैसे काइन और निश्ट, ये दोनों चीजें हम लोग निगेटिव फॉर्म यूज करने के लिए, सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म में जाने के लिए हम लोग निश्ट और काइन, ये दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी कब हम लोग निश्ट यूज करेंगे और कब हम लोग काइन यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी द निगेशन काइन इज यूज्ड विथ, कब यूज करते हैं हम लोग? नाउन के साथ तो दोनों यूज होते ही है. द निगेशन निश्ट इज, अब पैट्रिक ये भी नाउन ही है. उसके साथ साथ एक थोड़ी सी एडिशन ऐसी होती है कि जो निश्ट है वो प्रोनाउंस के साथ भी आ जाता है. ओके, तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. पहले हम लोग इंग्लिश का समझा लेंगे कि कैसे कहाँ पे यूज करते हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या रूल्स. अब ये भी चीज ऐसी है, निश्ट और काइन का यूज हम लोग, ये रूल है, ये ग्रामेटिक रूल है और इसके हिसाब से पढ़ो, ऐसा नहीं होता. वो बोलते बोलते भी हमें पता चल जाता है कि निश्ट कहाँ पे यूज करेंगे और काइन कहाँ पे यूज करेंगे. ओके, सो ये दो वर्ड्स है जो हमें अगर सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में डालना होगा तो यूज करते हैं, काइन और निश्ट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दैट काइन विल चेंज इनटू काइन ऑर्डर काइन, सिंपल काइन, और निश्ट तो वैसा का वैसा ही रहता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? इज अलग क्लियर? जो ये काइन और निश्ट का है उस पे थोड़ा डिटेलिंग हम लोग अगले लेक्चर में जरूर करेंगे, बट अभी के लिए फिर से ये याद रखिए कि हमें कोई भी नाउन सामने आएगा उसका मास्कुलिन, फेमिनिन, ऑर्डर, न्यूटर, ये मतलब देर, दी, दास कौन सी कैटेगरी में जाता है वो देखना हमेशा के लिए जरूरी रहेगा. ओके, सो एनी डाउट्स? Ja, alle klar? Sehr gut. Dann danke und tschüss. Gute Wochenende. Danke, tschüss. Guten Wochenende. मॅम Yes. सांगू मॅम आता तुम्हाला ते
नंतर मी तुला हे केलं तर चालेल कॉल? Yeah, yeah, no, ma'am. या ओके Okay, bye, ma'am. थँक्यू बाय